السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے وزیر جنگلات کونڈا سریکھا کی رہائش گاہ پر دوپہر کے کھانے کی اسکیم کے ورکرز کے احتجاج کے باعث کشیدگی پیدا ہو گئی۔ کارکنوں نے حکومت سے اپنے طویل عرصے سے زیر التوا مسائل حل کرنے اور مڈ ڈے میل کا معاہدہ اکشیا پاترا فاؤنڈیشن کو دینے کے منصوبے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پلے کارڈز اٹھائے، بڑی تعداد میں کارکن جن میں ورنگل سے آئی خواتین بھی شامل تھی، وزیر کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے بقایا بلوں کی فوری ادائیگی پر زور دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کی تنخواہیں 5 ماہ سے زیر التوا ہیں۔ انہوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس نے ہماری تنخواہیں بڑھانے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب 18 ماہ گزرنے کے بعد بھی حکومت ادائیگی میں تاخیر کر رہی۔ احتجاج کرنے والوں نے مڈ ڈے میل کا معاہدہ اکشیا پاترا فاؤنڈیشن کو منتقل کرنے کی تجویز کی سخت مخالفت کی۔ مظاہرین نے وزیر کی رہائش گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ بعد ازاں پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ تیلگو فلموں کے مشہور اداکار رانا ڈگوبٹی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کے سامنے پیش ہوئے۔ ممنوعہ بیٹنگ ایپس کی تشہیر کے معاملے میں ED نے حال ہی میں انہیں حاضر ہونے کی نوٹس جاری کی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ ED کے دفتر پہنچے، جہاں حکام نے بیٹنگ ایپ سے حاصل ہونے والے معاوضے اور کمیشن کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ اس کیس میں اس سے قبل بھی ED نے رانا کو طلب کیا تھا، لیکن مصروف شیڈول کے باعث انہوں نے مہلت مانگی تھی۔ ED نے اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے 11 اگست کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ یاد رہے کہ اس کیس میں اس سے پہلے اداکار پرکاش راج اور وجے دیورکنڈا سے بھی ED حکام پوچھ تاچھ کر چکے ہیں۔ پرکاش راج سے 6 گھنٹے اور وجے دیورکنڈا سے 4 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ اسی کیس میں اداکارہ منچو لکشمی کو بھی ED نے 13 اگست کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ راجنا سرسلہ میں یوریا کے لیے کسانوں کی طویل قطاریں، بلیک مارکیٹنگ کا الزام۔ راجنا سرسلہ ضلع میں یوریا کی قلت سے کسان پریشان ہیں۔ چندورتی کوآپریٹو سوسائٹی کے سامنے کسانوں نے اپنی چپلیں قطار میں رکھ کر باری کا انتظار کیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ منڈل کے کسانوں کو مطلوبہ یوریا فراہم نہیں کیا جا رہا۔ 1 ہفتے سے روز آ رہے ہیں، مگر آج بھی یوریا ملنے کی کوئی یقین دہانی نہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ نجی تاجر کسانوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یوریا کو منڈل میں زیادہ داموں پر فروخت کر رہے، جس سے کسانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا۔ యూరియా కొరత లేకుండా చూడాలి। ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటారు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమంటున్నారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటారు। ఏ ప్రభుత్వం అయినా కానీ రైతుకు ఇటువంటి రాజకీయాలకు లాగద్దు। రైతుకు ఈ సమస్య పరిష్కారానికి వెంటనే ప్రభుత్వాలు చర్య తీసుకోవాలి। మరి రైతులకి BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست شدید مالی بحران میں ہے اور اس کی اصل وجہ کانگریس حکومت کی ناکام حکمرانی ہے۔ حیدرآباد میں جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کی تازہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فی الحال ریاست 10,583 کروڑ روپے کے ریونیو خسارے کا سامنا کر رہی۔ KTR نے کہا ہے کہ غیر محصولی آمدنی میں زبردست کمی آئی ہے اور بجٹ میں طے شدہ تخمینے کے مقابلے اب تک صرف 3.37% ہی وصولی ہوئی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے نہ کوئی فلاحی اسکیم نافذ کی، نہ کوئی پروجیکٹ تعمیر کیا اور نہ ہی طلبہ کو معیاری کھانا فراہم کیا۔ اس کے باوجود قرض لے کر آخر کیا کر رہی، یہ عوام کے سامنے واضح کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف رواں مالی سال میں ہی حکومت نے 20,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے قرض لیے ہیں۔ KTR نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست کی معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے حکومت کے پاس اگر کوئی منصوبہ ہے تو عوام کو اس سے آگاہ کرے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے جوبلی ہلز میں واقع ان کی رہائش گاہ پر صدر تلنگانہ کانگریس و رکن کونسل مہیش کمار گونڈ نے ملاقات کی۔ اس موقع پر مقامی بلدی اداروں میں BC طبقات کو 42% ریزرویشن کے سلسلے میں حال ہی میں قومی دارالحکومت دہلی میں BC دھرنے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور BC طبقے کو 42% ریزرویشن کے نفاذ کے لیے آئندہ کی حکمت عملی پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے TPCC PAC اجلاس کی تاریخ اور ایجنڈے کے نکات پر بھی غور کیا۔ اس کے علاوہ طویل عرصے سے زیر التوا کارپوریشن بورڈز اور کمیشنز میں ڈائریکٹر کی تقرریوں کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर एनटीआर ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से माफी मांगी है। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की फिल्म वार 2 की प्री रिलीज तकरीब हैदराबाद में शानदार तरीके से मुनक्किद हुई। इस तकरीब के बाद एनटीआर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी तकरीर में वो एक अहम बात कहना भूल गए, इसलिए वो मौजरत ख्वाह हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया कि इस प्री रिलीज इवेंट को इतने शानदार और पुरअमन अंदाज में मुनक्किद करने में ताउन किया। एनटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना पुलिस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनके मदाहों को खुश करने का मौका दिया, जिस पर वो शुक्रगुजार हैं। आमतौर पर चोर दो तरह के होते हैं, कुछ कीमती अशिया की चोरी की वारदातें करने वाले और कुछ सिर्फ नाम कमाने के लिए ये काम करने वाले। हालिया बरसों में सोशल मीडिया और यूट्यूब के असर से मुल्क भर में तरह तरह की अजीब व गरीब चोरियां और डकैतियां पेश आ रही। इसी सिलसिले में आंध्र प्रदेश में एक अनोखा वाकया पेश आया। अंगोल बस स्टैंड में एक शख्स ने आरटीसी बस ही चोरी कर ली। डिपो के करीब खड़ी इस बस को एक लॉरी ड्राइवर ने चोरी कर ली। इस वारदात का पता चलते ही डिपो अमले ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से चंद घंटों में ही बस को बाईपास रोड पर तलाश करके डिपो वापस पहुंचा दिया। तहकीकात में पता चला कि बस ले जाने वाला शख्स ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन लॉरी ड्राइवर था। आवारा कुत्तों के मसले से 2-4 दिल्ली एनसीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 8 हफ्ते के अंदर सभी लावारिस कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में शिफ्ट किया जाए। अदालत ने ये भी कहा है कि उन कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा। कौमी राजधानी में कुत्तों के काटने के वाकयात पर अज खुद नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत MCDNDMC को कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि किसी भी कीमत पर नौज़ायदा और छोटे बच्चे आवारा कुत्तों के शिकार नहीं बनने चाहिए। हालात बहुत संगीन है और फौरी तौर पर कदम उठाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हिदायत दी कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकारी के लिए पनाहगाहों में वाफर एहलकार होने चाहिए। हाल ही में दिल्ली में रोहनी के पास पोर्ट कला में आवारा कुत्ते के काटने से रेबिस की वजह से 6 साला बच्ची की दर्दनाक मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में अज खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर शायक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उसे बेहद परेशान करने वाला और तशवीशनाक बताया था। गुज़िश्ता चंद दिनों से फिल्मी शूटिंग्स के वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे के साथ प्रोड्यूसरों के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत पैदा हो गई है, क्योंकि फिल्म फेडरेशन और वर्कर्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद फिल्म फेडरेशन ने टॉलीवुड में शूटिंग्स रोक देने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत इन प्रोड्यूसरों की फिल्मों की शूटिंग भी बंद रहेगी जिन्होंने तनख्वाह में इजाफे पर इत्तफाक किया था। तनख्वाहों के मामले पर दोनों फरीकों के दरमियान कोई समझौता न होने पर फिल्म चैम्बर ने प्रोड्यूसरों को हिदायत दी थी कि वो फेडरेशन से ताउन न करने की सूरत में शूटिंग्स बंद कर दें। अब फेडरेशन ने भी यही फैसला लेते हुए टॉलीवुड की तमाम फिल्मों की शूटिंग्स आर्जी तौर पर रोक दी है। फेडरेशन के सदर अनिल ने वाज़ेह किया है कि पहले से तयशुदा शूटिंग्स मुकम्मल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। ताहम इस फैसले से इस वक्त आखिरी मरहले में मौजूद रवि तेजा की फिल्म मास यात्रा की शूटिंग भी रुक गई है। ये फिल्म 1 हफ्ते में मुकम्मल होनी थी, लेकिन शूटिंग पर पाबंदी के बाइस इसकी रिलीज में ताख़ीर का इम्कान पैदा हो गया है। अगरचे फेडरेशन ने कहा है कि तयशुदा शूटिंग्स 2 दिन में मुकम्मल की जाएं, लेकिन 1 हफ्ते का शूटिंग शेड्यूल 2 दिन में ख़त्म करना मुश्किल दिखाई देता है। पहले से ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक ये फिल्म इस महीने की 27 तारीख को रिलीज होनी थी। इससे पहले जारी किए गए गाने फिल्म के लिए काफ़ी तशहीर का बाइस बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाते हुए कहा है कि जिले अफसरान को मुअत्तल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा करेगा तो जाली वोटर लिस्ट नहीं बनेगी। जब तक इलेक्शन कमीशन उन्हें मुअत्तल नहीं करता, हुकूमत उसे नहीं रोक सकेगी। जब अफसरान ही वोट छीनने के लिए मुजरिम बन जाएं तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने ये बयान इलेक्शन कमीशन और वोटर लिस्ट पर जारी तनाज़े पर सवालात के दरमियान दिया।
यही नहीं, उन्होंने यूपी में गुज़िश्ता इंतखाबात और ज़मीनी इंतखाबात में हुई धांधली का भी जिक्र किया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कर्नाटक लोकसभा की एक असेंबली पर 1 लाख से ज्यादा वोटरों की धांधली का इल्जाम लगाया। इसके अलावा बिहार में SIR के मामले पर ऑल इंडिया इत्तेहाद ने इलेक्शन कमीशन को मुसलसल घेर रखा है। अखिलेश यादव भी इस बारे में आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कमीशन ऐसे एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके मिसाल कायम करे। जब तक ऐसा नहीं होता, वोटर लिस्ट में बेज़ाब्तगियों को रोका नहीं जा सकता। अखिलेश यादव इससे कबल भी उत्तर प्रदेश में इंतखाबी ओहदेदारों पर सवाल उठा चुके हैं। खासतौर पर गुज़िश्ता असेंबली ज़मीनी इंतखाबात में उन्होंने खुलकर कुछ ओहदेदारों का नाम लिया था। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जबरदस्त कशीदगी का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी बहरी अफवाज को अपनी ताकत का मुजाहरा करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब वो बहरे अरब में हलचल पैदा करने वाले हैं। दरअसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बहरिया एक ही वक्त पर फायरिंग ड्रिल करने जा रही और उसे लेकर दोनों मुल्कों के बहरिया ने नेविगेशन एरिया वार्निंग जारी की है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बहरिया अपने अपने इलाके में सब सरफेस फायरिंग ड्रिल करेगी। इसके तहत मरीन ट्रैफिक को मश्क के इलाके से दूर रहने का इंतबाह किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जारी नवेरिया वार्निंग के मुताबिक सुबह 4 बजे से 12 अगस्त की शाम 4 बजे तक मरीन ट्रैफिक के मश्क के इलाके से दूर रहने की वार्निंग जारी की गई। दोनों मुल्कों के मश्क मुकाम तकरीबन 60 नॉटिकल मील की दूरी पर, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसियां काफी अलर्ट। मौजूदा हालात और बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान ये सरगर्मी स्ट्रैटेजिक नुक्ते नजर से अहम तस्लीम की जा रही। हिंदुस्तानी बहरिया का मश्क गुजरात के पोरबंदर और ओखा के समंदरी साहिल पर किया जा रहा है। इसके साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों ने समंदरी इलाके में फायरिंग मश्क के लिए इत्तला जारी की। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे की वजह उन्होंने सेहत से मुताल्लिक़ वजूहात बताई थी। हैरानी की बात यह है कि इस्तीफा देने के बाद से अब तक जगदीप धनखड़ को किसी ने नहीं देखा, ना ही उन्होंने किसी तकरीब में हिस्सा लिया। इस मामले को लेकर अपोजिशन ने हुकूमत पर सवाल खड़े करने से शुरू कर दिए हैं। शिवसेना UBT रहनुमा संजय रावत ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर कॉर्प्स अर्जी दाखिल करने का इंतबाह किया है। राज्यसभा MP संजय रावत ने अमित शाह को लिखे गए खत में नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे और उसके बाद से उनके लापता होने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। संजय रावत ने खत में कहा, 21 जुलाई को धनखड़ ने ऐवान बाला की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चलाई थी और पूरी तरह से सेहतमंद दिखाई दे रहे थे। हालांकि इसी शाम उन्होंने सेहत वजूहात का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। रावत के मुताबिक तब तक धनखड़ की सेहत या ठिकाने को लेकर कोई सरकारी इतला सामने नहीं आई और अपने इस खत में संजय रावत ने बताया कि अराकीन पार्लियामेंट ने धनखड़ से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बंडीपुर में हाथी का सयाह पर हमला, बाल बाल बचा केरला का रिहायशी। कर्नाटक के बंडीपुर टाइगर रिजर्व में एक सयाह की जान खतरे में पड़ गई जब उसने हद से ज्यादा जोश व खरोश दिखाते हुए गाड़ी से उतरकर हाथी के सामने खड़ा हो गया। ये शख्स केरला का रिहायशी बताया जा रहा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हाथी ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन खुशकिस्मती से सयाह मामूली जख्मी हुआ और जान बचाने में कामयाब रहा। महकमे जंगलात ने सयाहों को वार्निंग दी है कि इस तरह के खतरनाक इक़दामात से गुरेज करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది.
ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।